अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स और इसके अंदर हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंगल नोड पेयर केस देखा था और हमने वहाँ पे वोल्टेज जो कि कॉमन है बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स उसकी हमने एक्सप्रेशन डिटर्मिन की थी। अभी हम एक सिंगल लूप केस देखेंगे वेयर वी हैव अ रजिस्टर, an inductor and a capacitor all connected in series, making this single loop case. And here we can see current is common between all these elements. So हम यहाँ पे इस current की expression determine करेंगे and for this हमारे पास resistance की value है 6 ohms, inductor is 1 Henry and capacitance is 0.04 farad. And here the initial conditions for the energy storage elements are also given. The initial value of inductor current is 4 ampere and initial voltage across capacitor is minus 4 volts. So we need to find out the expression for I of t. So सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, we are going to determine the second order differential equation in this case, और since it is a single loop case हम यहाँ पे KVL को अप्लाई करेंगे और KVL जब अप्लाई करेंगे तो it is sum of all the voltages in a loop is equal to 0 and you plug all the values in for each voltage. So V voltage across resistor is V is equal to IR, voltage across inductor is LdI by dt, and this expression is defining the voltage across capacitor. And for this expression, we take the derivative on both sides, we'll end up with this second order differential equation. And again, you substitute the value of R, L, and C into these elements, and make sure that the coefficient next to the second derivative is 1 because we need the normalized expression. So in this case, this is the normalized homogeneous equation that we will get. Here we can see this is A1, which is 2 zeta omega n. This is omega n square. From here I can see omega n is equal to 5. You put 5 over here, it is 10 zeta, which is equal to 6, and zeta is equal to 0.6. So just by looking at the value of zeta, मुझे ये पता चल गया that this is the case of underdamped where zeta is less than 1. और हमें पता है कि zeta less than 1 जब भी होगा तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगी, तो वो भी हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं. So in this particular case, this would be the characteristic equation and the solution of this characteristic equation. And by the way, by looking at this, we can see omega n, which is the natural frequency, is 5 and zeta is 0.6. So the solution of this characteristic equation is, we can see this is complex conjugate. So it is the second case, the second case of solution will apply in this case. और in that case हमें जो चीज़ें चाहिए that is omega d, जो कि हमें पता है कि ये जो इमेजनरी वैल्यू के साथ लिखा होगा दैट इज़ ओमेगा डी, और यहाँ पे जो लिखा होगा दैट इज़ सिग्मा. ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और इसका जो सोल्यूशन है विल बी ऑफ दिस फॉर्म. तो यहाँ पे मैंने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और ओमेगा डी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दी कोफिशिएंट्स A1 एंड A2. और A1 और A2 हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए होगी और हमें आई ऑफ 0 प्लस चाहिए और हमें डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ 0 प्लस चाहिए. ये दो वैल्यूज हमें चाहिए. तो हियर आई कैन सी क्या मेरे पास आई ऑफ 0 प्लस है. यस, करंट थ्रू इंडक्टर इज द सेम करंट जो कि आई ऑफ टी है, तो उसकी इनिशियल कंडीशन मुझे ऑलरेडी पता है, तो आई नो व्हाट आई ऑफ 0 प्लस इज. हाउ कैन आई फाइंड डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ 0 प्लस. तो सबसे पहले अगेन मैं ये देखूंगा क्या मेरे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ करंट हो. तो हियर आई कैन सी कि मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ करंट अवेलेबल है. हियर आई हैव, तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा. सो दिस इज R and I will replace t by 0 plus. So it is R of I of 0 plus L di of 0 plus. This whole thing is the voltage across capacitor. So it will be VC of 0 plus is equal to 0. तो मेरे पास I of 0 plus है, yes it is 4. क्या मेरे पास VC of 0 plus है, yes it is also given -4. यहाँ से मैं di of dt की वैल्यू निकाल लूँगा. तो लेट्स यूज दोज एक्सप्रेशंस एंड इफ आई गो बैक, तो अंडर डैम्प्ड केस में मेरे पास अगर ये वैल्यूज आ जाती हैं, लेट मी जस्ट शो यू जी. तो मेरे पास अंडर डैम्प्ड केस के अंदर अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है इट इज़ इक्वल टू V1, क्योंकि फोर्सिंग फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ ऑलरेडी 0 हो जाएगी. इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू A1 और जो डेरिवेटिव ऑफ द इनिशियल कंडीशन है इट इज़ इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. यहाँ पे मेरे पास जीटा ओमेगा एन ऑलरेडी पता है, ओमेगा डी हमें ऑलरेडी पता है, A1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, A2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. सो बाय मेकिंग यूज ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस वी कैन फाइंड आउट द वेरिएबल्स A1 एंड A2. सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. सो इन दिस केस
इनिशियल कंडीशन इज़ 4 एम्पेयर, सो A1 इज़ 4, ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो मुझे di/dt देगा। सो आई प्लग दोज वैल्यूज़ इन, Vc ऑफ 0 विच इज़ this expression, put t is equal to 0, this expression put t is equal to 0 is this one, this will give you L, ये वैल्यू और ये वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास di/dt की वैल्यू निकलती है -20 और ये किसके बराबर है, माइनस जीटा ओमेगा एन A1 प्लस ओमेगा डी टाइम्स A2। और अब मुझे जीटा भी पता है, ओमेगा एन भी पता है और ओमेगा डी भी पता है और A1 भी पता है बिकॉज A1 मेरे पास इनिशियल कंडीशन से आ गया है। सो और जो di/dt एट 0 है वो -20 है, तो यहाँ से मैं A2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो A2 कम्स आउट टू बी -2। सो A2 इज़ -2, A1 इज़ 4, बाकी वैल्यूज़ में मैं निकाल चुका हूँ। माई सोल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम विल बी दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर। तो यहाँ पे मैंने A1 और A2 यहाँ पे लिख दिया, दिस इज़ ओमेगा डी एंड दिस इज़ सिग्मा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन प्रॉब्लम्स को खुद भी अपने आप से सॉल्व करें ताकि उन स्टेप्स को आप अंडरस्टैंड कर सकें विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है वेयर यू हैव एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर, सो इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज हमारे पास, R1 इज 10 ohms, R2 इज 8 ohms, capacitance is 1/8 farad, inductance is 2 Henry, and now in the initial conditions that are given are 1 volt and 0.5 ampere, which is IL of 0. अब इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? So we can apply, what we are interested in finding out the voltage V of t across these terminals. So इस नोड के अगेंस्ट मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, लेट्स अज्यूम दिस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं KVL की इक्वेशन लिख लेता हूँ दैट विल डिफाइन दिस V of t। सो ये KVL मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। सो KVL की इक्वेशन क्या होगी, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज L di/dt, voltage across this one is I times R1, so I times R1, and then voltage across this is V of t, so this is V of t. So अब मैं यहाँ पे ये नोड वोल्टेज कैसे निकाल सकता हूँ, दिस नोड वोल्टेज इज बेसिकली V of t, तो मैं यहाँ पे एक KCL अप्लाई कर सकता हूँ। So this KCL will give me the node voltage V of t. So current entering the node is I of t, which is this. Current leaving the node is, current going through capacitor is C dV/dt, and current going through this resistor is V over R2, which is this. अब चूंकि मुझे ये वोल्टेज की एक्सप्रेशन चाहिए तो यहाँ पे जितने भी करंट्स हैं उन दिस I of t, इसकी जगह मैं ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो हर I की जगह पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो इफ़ आई प्लग दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर आई विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन। लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड इफ़ आई सिंप्लीफाई इट, मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज V of t विल कम आउट टू बी दिस। तो अब यहाँ पे मैं तमाम वेरिएबल्स पुट कर दूँ, यहाँ पे भी मैं तमाम वेरिएबल्स पुट कर दूँ। अगेन दिस इज़ 2 zeta omega n एंड दिस होल थिंग इज ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ से मैं जीटा की वैल्यू निकाल कर भी अपनी टाइप ऑफ सोल्यूशन डिटर्मिन कर सकता हूँ और चाहे तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिन करके वहाँ से भी मैं इसकी सोल्यूशन डिटर्मिन कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट आई विल गेट, दिस इज़ द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंस वी हैव कोफिशिएंट 1 ओवर हेयर। और यहाँ पे ये 2 zeta ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 एंड ओमेगा एन स्क्वायर इज 9, सो ओमेगा एन इज 3, so 2 zeta omega n will be 6 zeta is equal to 6, so zeta comes out to be 1. So it is type 3, which is the critically damped case, and in this case root of the characteristic equation will be real and equal. तो अगर मैं इस characteristic equation को कई रूट्स निकालूं, I will see it is s plus 3 whole square, which is equal to s is equal to -3. So the solution, and here we can also see that zeta is equal to 1. So in this case, this will be the solution of our problem, which is the critical damped case, और यहाँ पे मैंने already root जो है वो -3 यहाँ पे put कर दिया है। So I'm interested in finding out B1 and B2. So कैसे मैं ये determine करूँगा? If I go back, so for critical damped case, I can see the initial condition is equal to B1, क्योंकि since forcing function is 0 for complementary solution, तो ये चीज़ भी 0 हो जाएगी। तो x of 0 plus is B1, and derivative of x of 0 plus is this expression. So अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए तो मैं उससे B1 और B2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ solving these two expressions. So if I go back to the problem, so in this case initial condition जो voltage है, तो do I know the initial voltage of the capacitor? Yes, I know. This is VC 0 plus is 1 volt, तो वो B1 के बराबर है।
और अब हमने निकालना है डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ 0 प्लस। तो क्या मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज हो? सो हेयर आई कैन सी इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज है विच इज़ ओवर हेयर। तो क्या अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर t की जगह 0 पुट कर दूंगा। डू आई हैव i ऑफ 0? यस, आई हैव i ऑफ 0 विच इज सेम एज द इंडक्टर करंट। ये इंडक्टर करंट सेम है। आई हैव i ऑफ 0, I have v of 0, I can find dv by dt of 0. So you plug those values in this expression, you will end up dv by dt is equal to 3, which is equal to that expression जो हमने पीछे देखा। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि इनिशियल कंडीशन जो है वो v1 के बराबर है, और जो dv by dt है वो माइनस दिस इज माइनस जीटा ओमेगा एन b1. So b1 is v of 0 and this is equal to minus zeta omega n, which is I think this one. I think let me go back and confirm that. So in this case, yes, this is minus zeta omega n. So minus zeta omega n is minus 3 and b1 is v of 0. So minus zeta omega n. So minus zeta omega n is minus 3, b1 is v of 0 which is this, and plus b of 2. यहाँ पे आप सारी वैल्यूज प्लग करें, b2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6. So b1 is 1 and b2 is 6. You take both these values, you plug in this expression. तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी v of t की, let me just clear it, v of t comes out to be this expression that you have over here. So you have put b1 a1, b1 b2 and the value of s, which is the solution to this problem. So let's look at the last problem. इस problem के अंदर हमारे पास initial conditions given नहीं है, and we need to find v naught of t for t greater than 0, and v naught of t is the voltage across this resistor. तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे initial conditions given नहीं है और हमारे पास दो energy storage elements हैं, inductor and capacitors, we need to find the initial conditions, and in order to find the initial conditions we need to analyze the circuit for t less than 0. और t लेस दैन 0 पे जब मैं सर्किट को एनालाइज करूंगा तो मेरे पास इनिशियल कंडीशंस आ जाएंगी, और हमें पता है करंट थ्रू इंडक्टर एट 0 माइनस इज सेम एज 0 प्लस, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट 0 माइनस इज सेम एज 0 प्लस. तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस उस तरह आ जाएंगी. तो लेट्स सॉल्व दिस. तो सबसे पहले देखें हमने फाइंड आउट क्या करना है. सो वी नीड टू फाइंड v नॉट ऑफ t, and if we are able to find the current through this branch, I can find the voltage across this resistor, which is v naught of t. So v naught of t is 2 times current because resistance is 2 ohm. तो अगर मेरे पास करंट की एक्सप्रेशन आ जाती है, मैं सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास v नॉट ऑफ t आ जाएगा. और हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 मेरे पास जो स्विच है वो पोजीशन 1 पे है. तो इसका मतलब है ये जो करंट सोर्स है ये मेरे दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर को फुली चार्ज कर देगा. कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, इंडक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट. और जब t इज इक्वल टू 0 पे मैं सर्किट को एनालाइज करूंगा, दिस स्विच विल बी एट पोजीशन 2. तो ये करंट इसी लूप में फ्लो करता रहेगा, एंड नाउ ओनली दिस सर्किट विल एग्जिस्ट. और यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो एनर्जी इन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स ने स्टोर की हुई है, दैट एनर्जी विल बी रिलीज अक्रॉस दिस रजिस्टर. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इन दिस प्रॉब्लम. सो फॉर t लेस देन 0 जब हम सर्किट को एनालाइज करेंगे, हमें इनिशियल कंडीशंस पता चल जाएंगी. सो हमें t ग्रेटर देन 0 पे सर्किट को एनालाइज करना है. तो यहाँ पे हम KVL अप्लाई करते हैं, बिकॉज फॉर t ग्रेटर देन 0 द स्विच विल बी एट पोजीशन 2, ओनली दिस पार्ट ऑफ द सर्किट विल एग्जिस्ट. और यहाँ पे जब हम KVL अप्लाई करेंगे, सो इट इज़ करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस. सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज L di by dt. L की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इट इज़ 1/2. प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ करंट प्लस द इनिशियल कंडीशन, ये भी हमें ऑलरेडी पता है. एंड दिस वैल्यू इज 2i of t, which is v naught of t. This is positive, this is negative. This is the expression after applying the KVL in this loop we will get. So now in this case, taking the derivative on both sides, this is the expression that we will get. Make sure it is a normalized expression by having a constant 1 as the coefficient of the second derivative. अब ये जो प्रॉब्लम हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आया है, अब हम देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है. सो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो वैल्यू मेरे पास गिवन है, दिस इज 2 zeta omega n, दिस वैल्यू इज ओमेगा n स्क्वायर. तो चाहे तो हम यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड वी विल सी दैट द वैल्यू ऑफ zeta comes out to be less than 1. So if the value is less than 1, then it is an underdamped case, and in that case the roots of the equation are real and distinct.
So it is basically a overdamped case, sorry. So the case of overdamped, I of t is equal to k1 e raised to power s1t plus k2 e raised to power s2t, and we have already determined the roots of this equation which are real and distinct. हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे s1 और s2 की जगह, और अब हमें k1 और k2 की वैल्यू निकालनी है. एंड फॉर k1 एंड k2 वी नीड टू एनालाइज द सर्किट फॉर t लेस देन 0. तो t लेस देन 0 पे द सर्किट वुड नाउ लुक लाइक दिस. तो switch will be at position 1, capacitor will be fully charged, it will behave as open circuit, inductor is fully charged, it is in steady state, it will be replaced by a short circuit. तो अगर हम यहाँ पे देखते हुए IL 0 माइनस निकालें और VC 0 माइनस निकालें, तो यही मेरी इनिशियल कंडीशंस होंगी, बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज कंटिन्यूस एंड करंट थ्रू इंडक्टर इज कंटिन्यूस एज वेल. सो इन दिस केस अगर मैं गौर से देखूँ, ये जो 2 एम्पेयर का करंट है, इट विल ओनली फ्लो थ्रू दिस ब्रांच, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, नो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, एंड सिंस वी नो दैट हियर द करंट डायरेक्शन इज लाइक दिस, सो IL0 माइनस विल बी -2 विच इज़ नेगेटिव टाइम दिस सोर्स. और चूंकि यहाँ से कोई करंट गुजर नहीं रहा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इट विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज व्हाट वी कैन सी ओवर हियर. लेट मी जस्ट क्लियर इट. सो इनिशियल वोल्टेज across capacitor is 0 and initial current through inductor it is -2. So in this case T0 plus पे क्या होगा? These are the initial conditions that we have now. तो I of 0 plus will be -2 और VC of 0 plus is 0. तो ये वो initial conditions हैं जो हमें यहाँ पे अब मिल गई हैं, जो पिछले cases में हमें already given थी. So if you are not given the initial conditions, just analyze the circuit for T0 minus, और आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी करंट थ्रू इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट विल बी योर इनिशियल कंडीशंस. अब चूंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ करंट थ्रू इंडक्टर के, तो आई नीड टू फाइंड आउट di/dt एट 0 प्लस. सो डू वी हैव एन एक्सप्रेशन वेयर वी हैव di/dt? यस, ये जो हमने एक्सप्रेशन शुरू में निकाला था, यहाँ पे मेरे पास di/dt की एक्सप्रेशन है. दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो जस्ट पुट t इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, और I of 0 जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. So from here I of 0 plus, which is -2, which is equal to k1 plus k2, and derivative of current यहाँ पे VC of 0 plus, which is 0, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी. 2I is -2, I of 0 plus is -2, जब यहाँ पे पुट करेंगे it is -4, ये -4 जब इधर जाएगा ये हो जाएगा +4. This 1/2 here, इसको यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड ये भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो di/dt at 0 plus will be 8. So which is this, और S1 और S2 आपने यहाँ पे पुट कर दिए. नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, तो आप सिंपली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके K1 और K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. पुट दीज 2 वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन, यू विल एंड अप विद दिस वैल्यू ऑफ I of t. बट अगेन दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर. हमें तो V0 of t चाहिए, और V0 of t इज 2 times I of t. So simply इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, you will end up with V0 of t. So the point here is, whenever you are given a circuit where there is a switching mechanism, probably you might not be given the initial conditions. So if you're not given the initial conditions, make sure that you analyze the circuit for T0 minus, and that value will be the value of current through inductor and voltage across capacitor will be the same at T0 plus, because current through inductor is continuous and voltage across capacitor is continuous as well. So making use of the this analysis, you will find the initial condition, और फिर जिस भी value को आप determine करना चाह रहे हैं, you would have determined that expression जिसके अंदर आपको derivative of that initial condition मिल जाएगा, and then you will use that to find out the variables K1, K2, A1, A2 or B1, B2, whatever the case of solution you have. So with that, हमारा course जो है it is now complete. Please try and solve these problems yourself, and all the best. Thank you very much.